کہ رافضیوں کے قلعے میں زلزلہ پیدا ہو جائے، رافضیوں کے محل مسمار ہو جائیں۔ کوئی ایسی ایک عبارت دکھا دے، میں پوری زندگی غلامی لکھ دیتا ہوں۔ یہ چیلنج ہے یہ چیلنج سنی بردست کی طرف سے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اچھا، دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ٹاپک یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی اہل بیت سے محبت کس قدر تھی یا نہیں تھی؟ کیا اعلیٰ حضرت اہل بیت سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کچھ رافضی، شیعہ اور نیم رافضی ایسے لوگ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت محب اہل بیت نہیں تھے۔ آج اسی چیز کا ہم لوگ خلاصہ کرنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال ہم کرتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب سے۔ پہلا سوال ہے میرا آپ سے کہ کیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جی احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان جی کیا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ یہ کچھ رافضیوں کے سوالات ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو میں قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کر دوں جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی اہل بیت کی محبت۔ جو شیعہ حضرات اعلیٰ حضرت کے عشق اہل بیت پر جو انگلی اٹھا رہے ہیں، مجھے حیرت ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک عام بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ذرہ برابر بھی محبت موجزن نہ ہو۔ آپ بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی، وہ اعلیٰ حضرت جو عاشق رسول تھے، فنافی رسول اللہ تھے، اس اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا ایمان قرآن کریم پر تھا۔ اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت۔ جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیے گا، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو جب پڑھیے گا تو کو یقیناً لگے گا کہ اعلیٰ حضرت اس آیت کے مکمل مصداق تھے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت عاشق اہل بیت تھے۔ ہاں قمر بھائی، کہ یہ خیریت ہے؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ ابھی احمد رضا بھائی تھے ابھی یہاں اسی کرسی پر آپ کے آنے سے پہلے۔ شاید آپ کا من نہیں بھرا ہے ابھی تک۔ نہیں، ابھی کچھ اعتراضات باقی ہیں۔ آپ سے بھی میرے وہی سوال ہے، سب سے پہلا سوال جو ہم نے احمد رضا بھائی کو کیا تھا کیجئے کہ کیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ استغفر اللہ رب العالمین۔ اتنا بڑا الزام امام عشق و محبت پر؟ یہ رافضیوں کی طرف سے سوال ہے، میرا نہیں ہے۔ ہاں، یہ رافضیوں کی طرف سے ہے۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے اس اعتراض کی۔ سب سے پہلی وجہ یا تو حسد کی بنا پر یہ اعتراض ہے، یہ الزام ہے۔ اگر یہ حسد کی بنا پر اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے عبارات کے ذریعے، فتوا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے، نوک قلم کے ذریعے سے تمام رافضیوں کی دکانیں بند کیے ہیں، جو مزار کے نام پر، چادر کے نام پر، گاگر کے نام پر، میلہ اور ٹھیلا کے نام پر جو اپنی دکانداری چلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کی دکانداری اور ہر ایک کا ذریعہ معاش کو بند کیا ہے۔ اس وجہ سے حسد ہے ان کو اعلیٰ حضرت سے، یہ حسد کی بنا پر یہ الزام ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اگر دوسری وجہ ہے علم کی بنا پر، اگر علم کی بنا پر اعتراض کر رہا ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ جس کو علم کی بنا پر اعتراض ہے تو اس کو قیامت تک کے چیلنج ہے یہ کہ اگر کہیں بھی اعلیٰ حضرت کے ایک عبارات سے، ایک فتویٰ سے، کہیں ان کے نعتیہ کلام سے، کہیں بھی جو ہے ان کی کتابوں سے کوئی ایک ایسی عبارت دکھا دے جس میں بغض اہل بیت کی جھلک ہو، شان اہل بیت میں گستاخی کی ہو، کوئی ایسی ایک عبارت دکھا دے، میں پوری زندگی غلامی لکھ دیتا ہوں۔ یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج سنی بردست کی طرف سے ہے تمام رافضیوں کو۔ اور ہاں، میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس پر جواب دینے کو تیار ہوں۔
आपको किस अंदाज में जवाब चाहिए। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि आला हजरत ने बहुत अशार लिखे हैं, बेशक बहुत कलाम लिखे हैं, बहुत सारे। और बड़े नबी के आशिक गुजरे है कि नहीं, उनकी मिसाल आज तक नहीं। यह हम अहले सुन्नत का अकीदा है। बेशक। लेकिन राफजियों का ये कहना है कि आला हजरत ने अहले बैत की शान में शायरी भी नहीं की है। अरे आप कहाँ खो रहे भाई, आला हजरत की बात कर रहे हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े शायरों ने जो नातिया कलाम पेश किया है, उन्होंने अपने अपने अंदाज में पेश किया है, लेकिन आला हजरत ने जो शायरी पेश की है उनका अंदाज ही अनोखा है, उनका अंदाज लाजवाब बेमिसाल है। अच्छा, अब देखिए आला हजरत ने जो अल्लाह की बारगाह में जो इल्तिजा पेश की है, इल्तिजा, उस इल्तिजा में जिनको वास्ता बनाए वो कोई और नहीं बल्कि अहले बैत है। अहले बैत को वास्ता बनाकर पेश किया है। अब सुनिए नाजरीन, आप ये भी जरा सुनते चलें, वीडियो के आखिर तक आप बने रहें, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुतमईन होकर जाएंगे आज। देखिए आला हजरत अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा यूं पेश कर रहे हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, मुस्तफ़ा का वास्ता, मुस्तफ़ा का वास्ता मुस्तफ़ा के वास्ते से मांगा जा रहा है। और दूसरा सुने, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अब देखिए, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, यहाँ पर मुश्किल कुशा मौला अली का नाम आया जो कि अहले बैत के इमाम है। और आगे सुनिए, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, यानी सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन पाक को वास्ता बनाया जा रहा है। और आगे सुने, सज्जदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, यानी इसमें सज्जदे सज्जाद को वास्ता बनाया जा रहा है। सज्जदे सज्जाद कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो कि अहले बैत के इमाम हैं। और इल्म हक दे बाकर इल्म हुदा के वास्ते, ये हजरत इमाम वाकर का जिक्र आया जो कि अहले बैत में से हैं। और सुनिए, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, हजरत इमाम जाफर सादिक का तस्करा आया इसमें जो कि अहले बैत के इमाम में से हैं। बेगज़ब राजी हो काजिम और रज़ा के वास्ते, इसमें दो इमाम का जिक्र है, हजरत मूसा काजिम और हजरत इमाम अली रज़ा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। तो ये अइम्मा अहले बैत का तस्करा आया इल्तिजाइया कलिमात में। कि शायरी से भी अहले बैत की मोहब्बत को आला हजरत ने जाहिर किया हर एतबार, चाहे नज़्म में हो, नस्र में हो, फतवा में हो, अमल में हो। तो मैं आपसे चाहूंगा कि पहले आप आला हजरत के कलाम से, जो शायरी उनके हैं, इमामुल कलाम है उनका लक़ब। इमामुल कलाम, बेशक। इमामुल कलाम लक़ब है उनका जी। माशाअल्लाह। और ये राफिज़ियों को ये बातें हजम नहीं होती हैं, कभी नहीं होगी। हाँ, तो आप मुझे कलाम के हवाले से बताएं कि आला हजरत की मोहब्बत किस कदर थी अहले बैत से। इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर मोहब्बत थी। आला हज़रत लिखते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह। और मेरी नज़र में पूरी जो है दुनिया शायरी में अहले बैत की शान में जो सबसे बड़ा शेर है मेरी नज़र में, वो ये शेर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह, सुभान। और ये शेर आला हजरत ने एक ज़माने के लिए नहीं लिखा है बल्कि क़यामत तक के लिए। जाहिर सी बात है, इसमें है ही, तेरी नस्ल पाक में है, जब तक हुजूर की नस्ल बाकी रहेगी दुनिया में। ये यही नहीं, कुछ राफिजियों का एतराज़ है, जी जी, नीम राफजी शिया वगैरह का, कि आला हजरत ने बहुत फतवे लगाए फिरक़े बातिला पर। और हम अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि आला हजरत के फतवों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। तो उस राफजियों का ये सवाल है कि क्या आला हजरत ने बुग़्ज़े अहले बैत पर भी कोई फतवा लगाया है? बेशक दिया है, हवाले के साथ बताएं। बिल्कुल हवाला नोट करें। आला हजरत ने एक फतवा दिया कि आला हजरत ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो वो शख्स काफिर और मुनाफिक है। और आला हजरत ने अहले बैत की मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार दिया है। हाँ, और आला हजरत की ये वाली बात कि अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ये वाली बात आका अलैहिस्सलाम की ये वाली हदीस पाक की अक्कासी कर रही है। नबी ने फरमाया, मम्मात अला हुब्बि आली मोहम्मद माता शहीदा, यानी जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शख्स शहीद मरा। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत का, ये मोहब्बत वाली बात है। और आला हज़रत ने फरमाया कि जो अहले बैत से निफाक बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, उसको आला हज़रत ने काफिर कहा। तो ये वाली बात आला हज़रत की हुज़ूर इस्लाम की वाली हदीस पाक की अक्कासी कर रही है। नबी ने जब फरमाया, मम्मात अला बुग़्ज़ आली मोहम्मद माता काफिरा, यानी जो शख्स अहले बैत से दुश्मनी करते हुए मर जाए वो शख्स काफिर मरेगा। और ये वाली बात, यानी जो आला हज़रत ने जो फतवा लिखा, ये किस किताब में है? ये हवाला आप नोट करें, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 678, रज़ा फाउंडेशन एडिशन। अच्छा, यानी फतावा रज़विया में ये बात वाज़े है कि जो अहले बैत से मोहब्बत न करे वो शख्स काफिर और मुनाफिक है। मुनाफिक है, मुशरिक। हाँ, माशाअल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। मेरा आपसे ये सवाल है यही कि नहीं, कुछ राफिजियों का ये भी कहना है कि आला हज़रत सादात से मोहब्बत नहीं करते थे या एहतराम नहीं करते थे सादात का।
एहतराम नहीं कर देते। हालांकि आप उठाइए फतवा आला हजरत, उठाइए आला हजरत की किताबें, जब पढ़ेंगे किताब ना पता तब ना पता चलेगा। हाँ। लेकिन इनको दुकानदारी से फुर्सत कहाँ, चादर बेचने से फुर्सत कहाँ, औरतों को छेड़ने छाड़ने से फुर्सत कहाँ है हाँ, इसको? ये सही पता है आपने, वो गांजा पी पी करके मज़ारों के चादर बेचना, गांजा फूक के, जिनको पहला कलमा याद ना हो, सही बात वो है। आला हजरत की जात जो अहकाम शरीयत से नाबलद हो, नाबलद। बहरहाल आला हजरत का फतवा एक मशहूर ज़माना फतवा है, बहुत मशहूर है। आला हजरत लिखते हैं कि अगर कोई सैयद हो, गुमराह हो, अगर उनकी गुमराही हद कुफ्र तक ना पहुंचा हो तो वो वाजिब ताज़ीम है, उनकी ताज़ीम जरूरी है। अभी और सुनिए, लेकिन अगर यानी आम लोगों पर ये वाजिब है कि कोई सैयद अगर गुमराह भी हो जाए गुमराह भी हो जाए तो उनकी ताज़ीम करना हम लोगों पे फर्ज है, फर्ज है, वाजिब है। फर्ज है, वाजिब है। माशाअल्लाह। अगर हद कुफ्र तक पहुंची हो हाँ। तो फिर नहीं, तो फिर क्योंकि नहीं है, हाँ। कुफ्र के बाद सियादत वो खत्म तो हो फिर जाती वहाँ से फिर सारे नसब खत्म हो जाते हैं। और भाई है। जी यही नहीं, राफजियों की अभी और तरफ से सुनिए। सवाल ये भी है, जी एतराज़ है उनके कि आला हजरत ठीक है शायरी किए हैं, किताबों में लिखे हैं, जी लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर सादात का एहतराम नहीं करते थे। नहीं करते थे, ये भी इल्ज़ाम है ना? जब आला हजरत की ज़िंदगी पढ़ेंगे तब पता चलेगा हाँ। कि आला हजरत के घर में एक सैयद ज़ादे, एक आले नबी औलाद अली उनके घर में मुलाजिम के तौर पर रहते हैं। जब आला हजरत को ये बात पता चलती है कि ये सैयद में से हैं, सैयद हैं, ये आले रसूल हैं, तो आला हजरत अपने घर वालों को ताकिद कर देते हैं कि एक ज़र्रा बराबर भी इनसे काम नहीं लेना है, अच्छा, लेकिन तनख्वाह दी जाएगी, माशाअल्लाह। जो उनका वजीफा है दिया जाएगा, हाँ। काम एक भी नहीं लेना है, क्योंकि इनकी ताज़ीम हम पर वाजिब है, ज़रूरी है। माशाअल्लाह, इस कदर ताजी, इस कदर और अब ताज़ीम। ताज़ीम आप आगे बढ़िए, सुनते चले। आला हजरत अशरफी मियाँ कछोचवी अच्छा, जब मिंबर रसूल पर बयान करते थे, तकरीर करते थे, तो आला हजरत उसी महफिल में खड़े होकर के उनका बयान सुनते थे। क्यों? क्योंकि एक सैयद ज़ादे बयान कर रहे हैं, माशाअल्लाह, एक नबी के, ये ताज़ीम है। ये ताज़ीम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। कमर भाई यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है, आपने प्रैक्टिकली भी बताया कि आला हजरत इस कदर मोहब्बत करते थे कि एक मुलाजिम को तनख्वाह देते भी थे, लेकिन देते काम थे नहीं और देते। काम नहीं करवाते थे। बहरहाल, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसके रंग ढंग, यहाँ तक कि उसके नाम को भी अपनाता है। बेशक नाम को अपनाता है। मैं बताऊं आपको हाँ, कि जो एतराज़ करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं आला हजरत पर, जब उनकी जब घरेलू मामलात को देखेंगे, उनके आलो औलाद के जब देखेंगे, उनके नाम पाएंगे निष्ठा क्वीन, व्हाट्सएप क्वीन, करीना, तो ठिकाना सोनम, सोनी, पकाना। हाँ। लेकिन जब आला हजरत के ख़ानदान को आप देखें, उनकी नस्ल को देखें कि आला हजरत ने अपने औलाद में, अपनी नस्ल में मोहब्बत अहले बैत को किस तरह शामिल किया है। हाँ, जरा सबसे बताएं। पहले अब आला हजरत के दादा जान रज़ा अली खान, माशाअल्लाह, ये भी अहले बैत का नाम है। उनके अबू हज़रत जान इमाम अली रज़ा से निस्बत है, इमाम अली रज़ा से। माशाअल्लाह। उसके बाद उनके अबू जान नकी अली खान, हज़रत इमाम नकी रज़ा से नकी रज़ा से। निस्बत और जो आला हजरत का नाम है अहमद रज़ा, अहमद से आका अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत, माशाअल्लाह, और रज़ा से इमाम रज़ा की तरफ निस्बत। माशाअल्लाह। और जब सुभान इनके अल्लाह। जो है, इनकी 5 बेटियां हैं, अच्छा, 5 बेटियां। ज़माना जब अपनी बेटी का नाम रखता है तो जो है कुछ हजरात कनीज़े फातिमा रख देते हैं, कनीज़े ज़हरा रख देते हैं, लेकिन आपको मुनफरिद नाम सुनने को मिलेंगे आज। मुस्तफ़ाई बेगम, माशाअल्लाह, कनीज़े हसन, सुभान अल्लाह, कनीज़े हसनैन, सुभान अल्लाह, मुर्तज़ाई बेगम, माशाअल्लाह, कनीज़े हुसैन। माशाअल्लाह। अब देख लीजिए अहले बैत की मोहब्बत की झलक। मोहब्बत इस कदर है कि अपनी औलाद, अपने बेटियों के नाम में भी निस्बत अहले बैत शामिल है। ये मोहब्बत की दलील नहीं तो और क्या है? माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी दलील है राफजियों। और चाहिए किसी पे सबूत आपको? हाँ, किसी तौर एक पर? एतराज़ और है कि वो जो आला हजरत का मशहूर ज़माना सलाम है, सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। मतलब इससे भी सबूत चाहिए आपको? हाँ, इसलिए कि इस सलाम को पढ़ने पर एक जगह बड़ा हंगामा हुआ था। हंगामा क्यों ना हो? तो मुझे आप बताएं, क्या इस सलाम में मोहब्बत अहले बैत का कहीं जिक्र नहीं है? अल्लाह, आखिर क्यों मिर्ची लगती है इस सलाम से लोगों को? सलाम रज़ा में, मुस्तफ़ा जान रहमत में, हाँ, अहले बैत की शान में 18 अशार लिखे हैं। 18 अशार 18 अशार अहले बैत की शान में। अहले बैत की शान में। चलिए, मैं इस कम वक्त में आपसे 18 अशार तो नहीं पूछूंगा, चंद अशार बता दीजिए। चंद अशार बता देंगे, लेकिन उर्दू इतना हार्ड है कि आपके राफ़ज़ी समझ नहीं पाएंगे। खैर, ये तो मैं मानता हूँ कि जो राफजी हैं वो जाहिल ही होते हैं। आप इस नियत से बता दीजिए कि हमारे अहले सुन्नत में से जो नहीं जानते हैं नहीं जानते हैं। वो जान लेंगे।
سب سے پہلا جو مطلع ہے سلام کا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام، شمع عبد میں ہدایت، یہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو کہ اہل بیت میں شامل ہے۔ اعلیٰ حضرت اہل بیت کی شان میں لکھتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، آہا، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ میں ایک رافضی کو یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس شعر کا ترجمہ کر دیں بس۔ نانی مر جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور آگے؟ اور آگے لکھتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت حضرت فاطمہ کی شان میں لکھتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، واہ۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب سنیں جو ہے حضرت علی کی شان میں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، آہا، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، سبحان اللہ۔ اب جو ہے حضرت علی کے بڑے صاحبزادے امام حسن، اچھا، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن مجتبی سید الاسخیاء، آہا، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت امام حسین کے بارے میں شعر سنیں اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کفے دستے قربت پہ لاکھوں سلام۔ سلام، واہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کی اگر بات کی جائے اور خاص کر اعلیٰ حضرت کی محبت اہل بیت پر بات کی جائے تو کئی راتیں کم پڑ سکتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ دوستو، اس ویڈیو کو اس انداز میں شیئر کیجئے، اس زوردار انداز میں شیئر کیجئے کہ رافضیوں کے قلعے میں زلزلہ پیدا ہو جائے، رافضیوں کے محل مسمار ہو جائیں۔